نواز شریف ایبٹ کے قریب حویلیاں میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ بہنوں اور بھائیوں کو میرا سلام، آپ سب کو، چھت والوں کو میرا سلام، اور بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، ساتھیوں کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے نواز شریف کا سلام۔ یہ آپ کو معلوم ہے آج کتنے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اندازہ ہے؟ 1997 میں ملے تھے ہم، 1997 میں۔ یہ کوئی نہیں، یہاں نعرے نہیں لگیں گے۔ اگر یہاں نعرے لگیں گے تو پھر میں تقریر نہیں کر سکتا۔ اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نعروں سے وہ بھی بہت پریشان ہوں گے۔ نعرہ آخر میں لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر نعرہ ہی لگانا تو میں لگاؤں گا انشاءاللہ آخر میں۔ تو بھائی آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ ابھی میں نے کہا 1997 میں ملاقات ہوئی تو آپ تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ اتنی دیر کی جدائی کے بعد آپ تالیاں بجا رہے ہیں؟ بلکہ آپ سے دور رکھا گیا مجھے، آپ سے اتنا عرصہ مجھے دور رکھا گیا۔ 1997 میں ہم آئے تھے، پاکستان کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، دل میں امنگ تھی کہ میری قوم بن جائے، میری قوم ترقی کرے، یہ پسماندہ قوم اللہ اس کو ترقی دے۔ یہ تھا دل میں جذبہ کہ دن رات محنت کر کے اللہ سے دعا کروں گا کہ اس قوم کی تقدیر کو بدلے، کیونکہ یہ پسماندگی میں نہیں دیکھ سکتا، نہ اس وقت دیکھ سکتا تھا نہ آج دیکھ سکتا ہوں۔ میری قوم کا انہوں نے پچھلے 12 سالوں میں کیا سنوارا؟ 1997 سے لے کے آج تک 15 سال ہو چکے ہیں، یا لیٹ اس سے کہ 1999 سے لے کے اب تک 14 سال ہو چکے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی ہے اس قوم میں؟ کیا تبدیلی آئی ہے اس ملک میں؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ غریب ویسے کا ویسے ہی غریب ہے، روٹی کے پیسے نہیں ہیں غریبوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ آج بے روزگاری ویسے کی ویسی ہے، غربت ویسے کی ویسے ہی ہے، اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ ان 14 سالوں میں کیا بدلا؟ کیا اس ملک کے اندر خوشحالی آئی؟ ڈکٹیٹر آیا، 8-9 سال اس قوم کے وہ برباد کر گیا۔ ڈکٹیٹر کے بعد زرداری صاحب آئے، 5 سال قوم کے انہوں نے اور برباد کر دیے۔ وہ زمانہ تھا 1997 سے لے کر 1999 تک، جن 2 سالوں میں وزیر اعظم پنجاب تھا، اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے اس میں ترقی کی رفتار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوان جو نعرے مار رہے تھے، جن کو میں نے ابھی منع کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے۔ 1991 میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اس ملک میں ترقی کا پہیہ چلا ہے، پاکستان کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ اسی زمانے کے تو موٹر وے بنے ہوئے ہیں، اسی زمانے کے تو ہم نے ڈیم بنائے تھے، اسی زمانے کے تو ہم نے پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر، اور پھر اس کے بعد ہم نے گوادر بنایا تھا، اسی زمانے میں تو ہم نے لاہور اور کراچی کا ہوائی اڈا بنایا تھا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا، اس میں خلل نہ پڑتا، اس میں یہاں پہ کبھی کوئی صدر ٹانگیں کھینچتا رہا، کبھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر ٹانگیں کھینچتا رہا، آ کے سب کچھ برباد کیا انہوں نے۔ اگر وہ تسلسل رہتا پاکستان میں،
جو ہم نے شروع کیا تھا 1991 میں، آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمانہ تھا 1991 کا، پھر 1997 میں زمانہ آیا، پہلے بھی 2 سال ملے، اگلے دور میں بھی ہمیں 2.25 سال ملے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے 2 باریاں لی ہیں۔ 2 باریاں اگر مجھے ملی تو پہلی باری 2 سال میں ختم کر دی گئی اور دوسری باری کو 2.5 سال میں 2.25 سال میں ختم کر دیا گیا۔ یہ کیا باریاں ہیں؟ اگر 5 سال دیے جاتے تو جناب جس طرح سے اپنے پشاور سے لے کے اسلام آباد سے پھر لاہور موٹر وے بنائی ہے، یقین کرو وہ موٹر وے آج حویلیاں تک بھی پہنچی ہوتی، وہ موٹر وے آگے جاتی ہے ایبٹ آباد سے مانسیرا جاتی اور مانسیرا سے جاتی آگے وہاں خنجرا پاس تک چائنا کے بارڈر تک جاتی۔ یہ جو ہم نے کاغان ہائی وے جو بنایا ہے، جو وہاں سے بالا کوٹ سے لے کے بلکہ مانسیرا سے بالا کوٹ، یہ بھی ہمارے دور کا تحفہ ہے اور یہ سنبھال نہیں سکے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دن رات ایک کر کے یہ سب کچھ بنایا اور ڈکٹیٹروں نے آ کے اس کو برباد کیا۔ ہمارا زمانہ یاد کرو، زمانہ ہمارا یاد کرو، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی ہر وقت آتی تھی، جاتی نہیں تھی، ہر وقت رہتی تھی بجلی۔ آج کل کتنی ہے یہاں بجلی آتی؟ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ تو جناب ذرا علاقے کے لوگ ذرا مجھے بتائیں نا۔ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، صحیح ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ یہ حال ہے میرے پاکستان کا، یہ حال ہے ہمارے ایٹمی ملک کا۔ دنیا میں صرف 7 ایٹمی ملک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا۔ دنیا میں 7 ایٹمی ملک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا، پھر اس کے بعد انڈیا اور پھر پاکستان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹمی قوت اس طرح کی ہوتی ہے جہاں 12 گھنٹے بجلی نہ آئے۔ کیا کریں گے یہ لوگ؟ کس طرح سے ترقی کریں گے؟ یہ نوجوان نسل کا کیا ہوگا؟ کیا کاروبار چلے گا اس ملک کے اندر؟ کیا خوشحالی آئے گی اس ملک کے اندر؟ کیا تصور ہم آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایٹمی ملک ہے، یہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے اور نہ روٹی ہے لوگوں کو کھانے کے لیے۔ ایٹمی ملک اس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہمارا وہ منصوبے تھے، پتہ نہیں کون سی نظر کھا گئی ہے پاکستان کو، جو پاکستان کو یہ لوگ ترقی نہیں کرتے ہوئے خوش ہوتے دیکھتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ ان 5 سالوں میں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف ہمارے خلاف تنقید کرتا ہے۔ بھائی نواز شریف تو کہتا ہے کہ تم نے ان 5 سالوں میں بجلی کا ایسا بیڑا غرق کیا کہ جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تو یہ کوئی تنقید ہے؟ یہ تو سچ بولتا ہے نواز شریف، یہ تو نواز شریف سچ بات کرتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو کیا دیا ان 5 سالوں میں؟ کیا دیا ان 5 سالوں میں جو آج دوبارہ ووٹ مانگتے ہو؟ اگر 5 سالوں میں کچھ دیا ہوتا آج پاکستانیوں کو وہ نظر آ رہا ہوتا۔ اگر 5 سالوں میں کچھ دیا ہوتا تو آپ کو یہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور ریڈیو پر اور اخباروں میں آپ کو یہ انتخابی مہم نہ چلانی پڑتی۔ آج صرف آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو ٹی وی کے اوپر، ٹی وی پہ دکھاتے ہیں یہ بھٹو ہے، یہ بینظیر بھٹو ہے۔ بھائی زرداری صاحب تم اپنی بات کرو، تم نے کیا کیا اس پاکستان کے لیے اس 18 کروڑ میں؟ تم نے کیا کیا پاکستان کو؟ سوائے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت آبرو کی دھجیاں بکھرت رہی ہیں ان 5 سالوں میں، اس کے علاوہ تو تم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔
कितने लोगों को यहां पे रोजगार मिला है। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती रही है, लोग चिल्लाते रहे हैं महंगाई के खिलाफ, किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसका नोटिस लिया जाए। पीआईए का क्या हाल कर दिया है, रेलवे का क्या हाल कर दिया है। रेलवे भी बदतरीन किस्म की रेलवे पाकिस्तान में। पीआईए का हाल देख लें, दहशतगर्दी का हाल देखें, जगह जगह बम धमाके। मैंने कहा ना, अभी हमारे जमाने में कभी कोई लोड शेडिंग नहीं थी, हमारे जमाने में कभी कोई बम धमाके नहीं हुआ करते थे। कराची में अमन था, बदअमनी नहीं थी। बलोचिस्तान में अमन था, बदअमनी नहीं थी। लोग खुशहाल हो रहे थे। हमारे पास इतनी बिजली थी कि हिंदुस्तान हमसे बिजली मांग रहा था। हमारे पास इतनी गैस थी कि हमें कोई फिक्र नहीं थी। सरमायाकारी हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज ये रेलवे से मुझे अभी याद आया कि रेलवे का इतना बुरा हाल हो गया है। यार, यहां हवेलियां में भी किसी जमाने में ट्रेन आया करती थी, रेलवे आती थी या नहीं आती थी हवेलियां? याद है या नहीं याद है? वह बताएं, जिनको याद है जरा हाथ तो खड़ा करो यार। हाँ? तो ये रेलवे हमारी यहां पे हवेलियां तक आती थी, हमने उसको भी बर्बाद कर दिया। इंशाअल्लाह आप सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, यहां पर सब सुन रहे हैं, सरदार साहब भी सुन रहे हैं और आपके नुमाइंदे भी सुन रहे हैं। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए, आपका हक अदा करने के लिए बात कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, देखो फतह शिकस्त जो है ना वो अल्लाह देता है, फतह भी अल्लाह देता है, शिकस्त भी अल्लाह देता है। अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाब किया, हम इंशाअल्लाह एक बेहतरीन रेलवे दोबारा हवेलियां तक बहाल करेंगे। और यहां पर भी ये जो एक एक्सप्रेस वे बन रही है हसन अब्दाल से लेकर तो मानसेरा तक, एक्सप्रेस वे मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन मोटरवे की तरह से हम इंशाअल्लाह सड़क यहां पर बनाएंगे। ये जो इलाका है इसको तो इससे भी ज्यादा नवाजना चाहिए। ये इलाका नवाजने के लायक है। हमेशा पाकिस्तान के हक में हजारा ने फैसला किया, हमेशा। हजारा वालों, आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने जब भी फैसला किया, आपने पाकिस्तान के हक में फैसला किया। आइंदा भी करते रहना, आइंदा भी करते रहना, और कभी किसी डिक्टेटर के हक में फैसला मत करना। मैं आपको आज यहां अगर मैं वोट मांगने के लिए आया हूं तो आपको अपना समझकर मांगने के लिए आया हूं। मैं वोट इसलिए आपसे मांगने नहीं आया हूं, मेरी बात का यकीन करना मेरी बात का। मैं इसलिए वोट नहीं मांगने आया कि मुझे आप आके तो वजारत उज़्मा के मनसब पे आप मुझे बिठाएं। इसलिए खुदा जानता है मैं वोट नहीं मांगने आया कि जनाब मैं हुक्मरान बन जाऊं और मैं ऐशो इशरत करूं और मुझे कोई अपना फिक्र ना हो पाकिस्तान के अवाम की। मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं आज आपके पास, वोट मांगने भी इसलिए आया हूं। मेरा मुल्क मुसीबत में है, मेरा मुल्क इस वक्त बड़े इज़्तिराब में है, मेरा मुल्क इस वक्त मुश्किल में गिरफ्तार है। मैं पाकिस्तान की इस तरह की हालत नहीं देख सकता। इस मुल्क के बारे में मैंने कुछ और ख्वाब देखे थे, मैंने कुछ और ख्वाब देखे थे। ये नक्शा जो मेरे आंखों के सामने था, ये वो नक्शा नहीं है जो मैं आज देख रहा हूं। मैंने भी अपने दिल से फैसला किया है कि इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालेंगे, इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे,
इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए, इस गिरदाव से मुल्क को बाहर निकालने के लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। और अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी तो मैं इस्लामाबाद के आला ओहदों पे जाके बराजुमान नहीं हूंगा। मैं ऐवान सदर के अंदर नहीं घूमूं फिरूंगा, मैं घूमूं फिरूंगा। मैं अगर किसी जगह पे मौजूद हूंगा और मैं कहीं आऊं जाऊंगा तो वो पाकिस्तान के हवेलियां के बाजारों में, गलियों में, देहातों में आपके शाना बशाना। ये पाकिस्तान के मसाइल हम इसी तरह से हल हो सकते हैं। इसी तरह से हम दफ्तरों में बैठकर नहीं, अवाम के अंदर अवामी फैसले वहीं पे अवाम के अंदर किए जाएं। अवाम का दुख दर्द महसूस किया जाए कि यहां क्या मसाइल हैं, उधर क्या मसाइल हैं और उस तरफ क्या मसाइल हैं। उनको वही समझा जाए, वही मीटिंग बुलाई जाए। अगर काबीना की मीटिंग बुलानी तो उसी जगह बुलाई जाए। आओ बैठो मेरे साथ मिलकर इस अवाम की तकदीर को बदलने के लिए फैसला किया जाए। तकदीर अल्लाह बदलता है, लेकिन मेहनत इंसान करता है। दुआ से भी तकदीर बदलती है, लेकिन मेहनत लाजमी शर्त है। अल्लाह कहता है तू दुआ कर, मैं तेरी तकदीर बदल दूंगा। ये अल्लाह का ऐलान है, तो मेरे अल्लाह का फरमान है। तो हम तो समझते हैं कि ये वक्त जो है ये सियासत का नहीं है, ये जाती मफाद और लालच का नहीं है। ये तो वक्त जो है ये इबादत है। इनकी मखलूक की खिदमत किसी इबादत से कम नहीं है। इनकी खिदमत की जाए, मखलूक राजी, अल्लाह राजी। यहां पर बड़े बड़े सर्कस लगाने वाले लोग मौजूद हैं, लगा रहे हैं, सर्कस लगाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है भाई, ये लोग बड़े अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं। ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये जानते हैं कौन क्या कह रहा है और किसका माजी क्या है। हम तो वो हैं अल्लाह के फजलो करम से जो ना सिर्फ जुबान से बात करते हैं, आज हमारा माजी भी अल्लाह के फजल से आपके सामने है। इस मुल्क के लिए क्या खिदमत की हमने, वो सारी तारीख का हिस्सा बना हुआ आपके सामने है। हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते रहे इस मुल्क में, हाँ सरदार अब्बासी साहब को मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, आपको भी कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, खेली है मैंने क्रिकेट। ये नहीं कि मैंने नहीं खेली, खेली है मैंने क्रिकेट, लेकिन साथ साथ एटमी धमाका भी किया है। मोटरवे भी बनाया है, मोटरवे भी बनाया है, बस और खिदमत की है। गवादर का पोर्ट बनाया है, अमन कायम किया है मुल्क के अंदर और अमन कायम करके दिखाया है। पाकिस्तान एक बड़ा खुददार और गैरतमंद मुल्क है, उसकी गैरत को किसी को ललकारने की हिम्मत नहीं होती थी। खुद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म चलकर बस पे बैठ के पाकिस्तान आया था या नहीं आया था। गाजी भरोसा का हमने यहां पर उसको शुरू किया। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट को हमने किया, क्या कुछ नहीं किया हमने अल्लाह के फजलो करम से। और दिफाई मैदान में भी हमारी खिदमात बहुत हैं। और हमने एटमी धमाकों के साथ साथ फाइटर प्लेन चीन के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान के अंदर बनाया, जिसका नाम है JS थंडर। तो मेरे भाइयों, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को, इस तारीख को सामने आंखों के रखना। जब वोट डालने जाओगे तो सिर्फ इस चीज को रखना, कौन सिर्फ क्रिकेट खेलता है और कौन क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान की तामीर भी करता है। मैं किसी पे
मैंने उल्टे सीधे अल्फाज नहीं इस्तेमाल, किसी को गाली नहीं निकाली। ये तो गालियां भी निकालते हैं और ये बैट पकड़ के फेंटा लगाने की भी बात करते हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह, अब देखें वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। अब देखें इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये गालियों वाली सियासत जो है ये नहीं चलेगी। उन्होंने बुला लिया है, अब देखो वो क्या फैसला करता है। भाई आपने भी देखना है, मैं समझता हूं कि इखलाक के दायरे से बंदे को बाहर नहीं निकलना चाहिए और इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, मेरे ख्याल इससे ज्यादा उनके बारे में कहना फजूल है, कोई बात मजीद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? लीडर को इखलाक वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिस लीडर का इखलाक नहीं है, शेर थल्ला के नारा लाओ, बस। जिस लीडर का इखलाक होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए। बा इखलाक को लीडर होना चाहिए या नकम्मी जो जुबान बोलने वाले को लीडर होना चाहिए? जो समझते कि बा इखलाक आदमी को लीडर होना चाहिए वो तो हाथ खड़ा करे। बहुत शुक्रिया। देखें आई लव यू टू। उन्होंने कहा था, आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, मैं सुना देता हूं। वो नौजवान था, वहां बैठा हुआ था, उसने कहा नवाज शरीफ आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू टू। ये नौजवान भाई, बस ये नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, ये पीएमएलएन का भी सरमाया है, ये नवाज शरीफ की मुस्तकबिल की टीम है। नौजवानों, ये जो 30 साल से नीचे लोग बैठे थे हाथ खड़ा करें, जो 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, ये तो सब 30 साल से कम उम्र वाली यूथ है। वो जो दूसरे जिस यूथ की बात करते हैं वो कहां है? सारी यूथ तो यहां बैठी हुई है। यूथ के दोस्तों देखो, मैं भूल गया आपके लिए बड़ा, उधर भी मैं हाथ खड़ा करा लूं भाई। जो 30 साल से कम उम्र वाले वो हाथ खड़ा करो। माशाअल्लाह, आप भी हैं। मैं देखो, बस मैं यूथ के लिए, आपके लिए बात करने लगा हूं। आपके लिए मैसेज है मेरे पास, आपके लिए पैगाम देना चाह रहा हूं मैं कि जिसके पास हुनर है, डिग्री है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, हाथ में डिग्री लिए फिरते पता नहीं कितने साल हो गए, कोई पूछता नहीं है। सुन ले, ये तो मेरे दिल की बात की है सूबेदार ने। बस भाई, आप खामोश। जिसके पास डिग्रियां हैं भाई, नहीं देखा ना, नारा नहीं, अभी नहीं, बस अब मैं लगाऊंगा नारा। तो जिसके पास डिग्रियां हैं पूछता नहीं है कोई, हुनर है पूछता नहीं है कोई, काम करना चाहता है, वसाइल नहीं है, मां बाप गरीब हैं, बच्चे हैं खाने वाले लेकिन कुछ नहीं है पल्ले, और कोई मदद करने वाला नहीं है।
तैयार हो जाओ, अपनी कमर बांधो नौजवानों, कमर बांधो अपनी। बाकी तो नारा लगाने वाले हैं ना नौजवानों के बारे में, मैं अमली बात कर रहा हूं, अमली। तैयारी शुरू करो। हम इंशाल्लाह जगह जगह बैंक खोलेंगे, उनकी ब्रांचेस खोलेंगे, वहां सिर्फ पाकिस्तान की यूथ को कर्जे दिए जाएंगे। कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए, कोई दुकान खोलना चाहता है उसके लिए, कोई ज़राअत की मैदान में खिदमत करना चाहता है उसके लिए, कोई रोजगार के लिए कुछ बनाना चाहता है उसके लिए, खुद भी रोजगार कमाओ, 10-20 और नौजवानों को मौका दो। आओ तुम भी यहां काम करो, तुम भी अपना रोजगार कमाओ। ये है इंशाल्लाह, इसलिए मैंने कहा है मेरे मुस्तकबिल की टीम जो है वो ये यूथ है जो मेरे सामने बैठी हुई है या इधर खड़ी हुई है। तैयारी रखो, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा, ये उस वक्त बस लगता है आपका जज्बा जो है ना वो माशाल्लाह इतना ज्यादा है कि आप मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे। तो मैं कह ये रहा था और कहना ये चाहता हूं कि तैयारी रखो। मुस्तकबिल की टीम है हमारी मुस्लिम लीग नून की, आपसे मिलके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तामीर नौ करेंगे, पाकिस्तान को फिर तरक्की की बुलंदियों पर इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इस मुल्क में इंशाल्लाह ना लोड शेडिंग होगी, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद, फौरी नहीं। ये कुछ अपना यहां पे लोग अवाम को धोखा देने वाले कहते हैं ना कि हम जो बस 20 दिनों में ये कर देंगे, 3 महीनों में ये कर देंगे, नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन पहले दिन से आपको पता लग जाएगा कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ सही जानिब, सही सिमत अपना सफर उन्होंने शुरू कर दिया है, यह आपको पता लग जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाता है इंशाल्लाह देखेंगे साल, 2 साल, 3 सालों में इस मुल्क के मसाइल सब खत्म हो जाएंगे। और दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको और मुझे ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। हजारा यूनिवर्सिटी यहां पे हवेलिया में जो कहते हैं लेकर चले गए हैं मानसेरा तो शायद हम वहां से वापस ला नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम यकीनन हवेलिया के अंदर भी जो है वो एक चलें यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। यहां पर जो सर्कल, शेरवान और गलियात और हवेलिया में जहां जहां गैस नहीं पहुंची, इंशाल्लाह अल्लाह ने फतह दी, वहां फौरी गैस पहुंचाएंगे। मेरी बहनों आप भी तो खुश हो ना, जरा आप रोटी पका सकेंगे गैस के चूल्हों पर। रोटी आप ही ने पकानी है और आपको गैस मिलेगी, कितनी खुशी की बात है। जहां लकड़ियां जलाती हैं या सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, आपको इंशाल्लाह पीछे से पाइप के जरिए से गैस आएगी, रोटी भी जल्दी बनेगी, आपके शौहर भी आपसे खुश होंगे, आपके भाई भी खुश होंगे, पूरा खानदान आपसे खुश होगा और इंशाल्लाह ये कौम भी खुशहाल होगी। अब आप मुझे बताएं बिल्कुल बस उतना ही मुंह से कहलवाओ जितना कहना चाहिए मुझे। बिल्कुल बस तसल्ली रखो बस। और मैं आपको अब आप मुझे भाई देखें, मैंने कहा था आखिर में नारा लगाऊंगा और नारा भी फिर आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब जो मैंने आपसे बातें की हैं ये पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के जो है खुशहाली के लिए, मसाइल से बाहर निकालने के लिए, इस गिरदाव से बाहर निकालने के लिए, बोलो आप सब मेरा साथ दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ यार। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ नारा लगाओ, नारे के बाद बैंड बजेगा। नारा लगाओ मेरे साथ मिलकर हवेलिया के गयूर अवाम, पाकिस्तान
बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ एबटाबाद के करीब हवेलिया में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत अरसे बाद हवेलिया आया हूँ, इतना अरसा मुझे यहाँ की आवाम से दूर रखा गया। 1997 के बाद उन्होंने कहा कि वो हवेलियाँ आए हैं, उनकी हवेलियों के आवाम से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि पहले एक डिक्टेटर ने 10 साल मुल्क के बर्बाद किए, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा